In this tutorial, I will teach you how to create a bill in Excel in mobile phone, right? So for that, you have to install WPS software. Okay, WPS, this app you have to install. You can easily get this app in your Play Store. Okay, then after, what you have to do, you have to simply click on this app WPS. Then this window will come. Then click on this plus button. So you will get the option for typing the document in the Word, for making the presentation in PowerPoint, and then making the spreadsheet. So Excel functionality is just because of this spreadsheet. Okay, spreadsheet means a sheet that is containing rows and columns. Here you can easily calculate the things. So we will start this one, right? So let us see. Just click on this spreadsheet button. So now after, you have to click on this blank worksheet. Okay, so you will get this sheet. Now we will start creating the bill. So the first heading you have to give about your shop name. So just double click here. So let me give Digital World. This is my shop name, suppose Digital World. Then after, what I am doing, I am just giving the customer name. After customer name, what you have to do, just give the serial number for the items. Okay, so how to generate the serial number, again I am explaining this one. You have to type 1 and you have to type 2, that's it. Then after, you have to simply click and drag. How? Let us see. Just click on this one using this green down corner. You have to select only this two, 1 and 2. Only this two number you have to select. Then in top you can see there is the fill option. Where is the fill option? This option you have to use. Fill option, right? So fill option you have to use it. Click on fill button. Then after, you have to click and drag this one, this particular arrow. Sorry, again let me do it. Here is the fill option. Just click here. In this way you have to drag. So in this way you will get all the items. Suppose I want only 10 items, so let me delete it. So select this one, and here is the item. I can use this delete button. Okay, so in this way I have just generated the serial number up to 10 digit. Okay, the next thing what I have to do, I have to write the product name. Okay, so product name, let me just double click on this cell. The option will come product name, right? So here the name is bigger than the available size of the column. So just here you have to click. Let me show you with the brush. Here in this particular, in between the B and C, you have to click and increase the size of the column, right? So let me see how to do it. Here we have to click here. Then after, you can drag it here, left side also, right side. If you want to decrease it, you can decrease it. If you want to increase it, you can increase the column. So here my product name. So let me find firstly give the product's name, what I am selling in my shop. Okay, so here is my first item, suppose printer. Then after, I am giving the item pen drive. Then I am giving the item mouse, keyboard, then light pen. So in this way I have given the 5 items. You can give the 10 items. First, for explanation I am telling. Let me decrease the size of this serial number also. The next thing what we have to do, the next thing, I have to give the product's quantity. Okay, so quantity, I don't need this much column. This much is okay. So let me give the quantity. Then after, I am giving the price per unit, and here I am giving the amount, right?
So quantity column I can decrease more. Then this is the price. It is okay now, right? Now see how to do it. Quantity means how many pieces, है ना, the particular customer is purchasing. So let me give printer 3 quantity, pen drive suppose 5 pieces, mouse suppose 8 pieces, keyboard 2 pieces, and light pen 8 pieces. Now the price per unit. And one thing you remember here, you just noticed here, just like 1 2 3 4 5, these are the right align. मतलब सेल के वो राइट साइड में अरेंज हो जा रहे हैं. और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक द सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, they are arranged in the left. Okay, so always remember numbers are aligned to the right side and the characters are aligned to the left side. But you can also give the alignment, जैसे आपको ये 3 5 अगर आपको सेंटर में लेना है तो आप ले सकते हो, but the by default alignment for the numbers are right. Okay, that's why these are coming in the right side. So let me see. Printer price is suppose I am giving 9,999. Pen drive I am giving what? Suppose 800. Mouse I am giving 500. Keyboard I am giving 250. Light pen I am giving 600. Now I have to calculate this amount. I have to calculate this what? Amount. So amount is calculated by multiplying the quantity into price. ओके, जैसे एक की प्राइस की वैल्यू है 9,999, तो 3 की कितनी होगी? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर. सो लेट मी जूम द स्क्रीन टू शो यू द फॉर्मूला प्रॉपरली, है ना. आई हैव जस्ट जूम द स्क्रीन. नाउ यू कैन सी in Excel, every formula, whether addition, subtraction, multiplication, or any formula, you have to put first equal to sign. So from the keypad, I have just given the equal to sign. Now you have to multiply the quantity. So either you can give the cell address, जैसे ये 3 है तो ये 3 कहाँ पर है? C कॉलम पे और 7th रो पे. तो आप चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, C7. Okay, so quantity is multiplied, right? Quantity is there, C. So here we have to click C. Formula लिखने के लिए आपको नीचे में formula bar आ जाता है. Then after we have to multiply it. After multiplication you have to write the D7, क्योंकि जो 9,999 है वो कहाँ पर है? D7 पर है. आप या तो D7 लिखो या फिर उस सेल पर क्लिक कर दो. तो मुझे बेटर लगता है इस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है. देन यू हैव टू जस्ट गिव दिस ग्रीन बटन. ओके, यू विल गेट योर आंसर. आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट फॉर ऑल सेल्स. आपको सबके लिए नहीं करना है, सिर्फ एक सेल के लिए करना है. Then after you have to click this again. There is a fill option. All the fill option it is coming. We have to fill the download downside. So this greens I have just dragged this one. Here you have to click. Again do it. Fill. Okay. Again we have to try fill option. Actually mouse touch. Finger touch on the mobile also sometime not working, that's why. Otherwise it will come like this. It will come like this. Okay, so this way I can calculate the amount. Okay, and if you want to give suppose discount, you want to give the discount 10% to this amount. So to all items, अगर आपको all items को discount सिर्फ एक ही देना है 10%. So here at the top I am just giving that information that we are providing discount 10%. तो ये मैंने टॉप पे लिख दिया. सो डिस्काउंट हियर आई एम गिविंग व्हाट? 10. where is my percentage sign? This is my percentage sign. So in this way we can give the discount 10%. Now here I can calculate the discount, that is discount in rupees. Okay, so what I have to do, I have to calculate the discount to all the items 10%. So and 10% written in the C5, है ना. And this C5 it should be in constant, because here when we are calculating ना,
जैसे फर्स्ट आइटम की क्वांटिटी प्राइस के साथ अमाउंट हुआ तो आपने ये कैलकुलेशन हो गया, ये कैलकुलेशन इनके साथ हो गया, ठीक है, ये थर्ड कैलकुलेशन इन दोनों वैल्यू के साथ हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट इन रुपीज़, जो कि अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है. उसके लिए सबके लिए 10% ही डिस्काउंट है. मतलब जो C5 की एड्रेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक पर्टिकुलर दिस C5 एब्सोल्यूट. इसको ही को बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. अब देखो ये कैसे करते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू पुट इक्वल टू साइन. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, $C लगाना पड़ेगा. C के पहले आपको डॉलर का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है. मतलब जिस सेल को आपको एब्सोल्यूट करना है उसके पहले आपको डॉलर का साइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट मी सर्च द डॉलर साइन. वेयर इज माई दिस डॉलर साइन. Just 1 minute. Let me see first this C5. Okay, then you have to multiply to this amount. Okay, then press enter. So the first is calculated properly, but if you click and drag to the next one, okay, अगर आप क्लिक करके नेक्स्ट को ड्रैग करोगे ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. देखो अभी कैसे होता है. फिल, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. नेक्स्ट 1 minute, अगेन फिल इट. थोड़ा से टच में प्रॉब्लम है. फिल, ओके. तो देखो मैंने ड्रैग किया तो देखो ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है. अब सेकेंड वैल्यू देखो, फर्स्ट वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो ये प्रॉपर आपका इसके साथ हुआ था 10%, ये आ गया इसमें, है ना. सेकेंड वैल्यू यहाँ पे गलत हो गई क्योंकि जब C5 को जब आपने ड्रैग किया तो C6 का मल्टीप्लिकेशन मतलब QTY का मल्टीप्लिकेशन अमाउंट के साथ हो गया, तो वो वहाँ पे गलत हो गया क्योंकि कैरेक्टर का मल्टीप्लिकेशन. तो इसीलिए ये 10% को ना जो जहाँ पे C5 है इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ दिस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. ओके. सो मैं इसको पहले तो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और एक बार फिर से ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है सारे आइटम्स का उस पर्टिकुलर सेल के साथ, ठीक है. ये स्क्रीन विजिबल है या मैं इसको ऐसे कर दूँ, इस तरह से अच्छे से दिख रही है आपको, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. नहीं, बेटर वही है, ऐसे रखते हैं. तो ये आ गया डिस्काउंट इन रुपीज़. लेट मी कैलकुलेट दिस. डबल क्लिक, पुट इक्वल टू साइन, देन आई हैव टू यूज़ $C $5, है ना. जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया ये C5 तो आ गया. अब मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर C, अच्छा ये एडिट करने नहीं देगा आपको, सीधा आपको खुद से ही लिखना है $C $5. तो मैं साइन ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट. ये डॉलर का साइन, जहाँ पे ये प्लस के ऑपरेटर्स हैं ना सारे, यहीं पे आपको लास्ट में डॉलर का साइन है. सो $C और फिर से $5. तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेल एब्सोल्यूट हो गया. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इस अमाउंट के साथ, ठीक है. अब एंटर कर दो आप. अब आप देखो डिस्काउंट मिल गया आपको. फर्स्ट का तो सही से ही आ गया. अब आप सेकंड का भी करके देखो क्योंकि अब सब सारी सेल का कैलकुलेशन 10% वाले पर्टिकुलर सेल एड्रेस के साथ ही होगा, ठीक है. तो ये अब हमारा सही है प्रोग्राम. ये ओके हो गया, फॉर्मूला भी राइट हो गया. अब हम इसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और फिल कर देते हैं बाकी सब के लिए. तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन से फिल से, और ये हमको ड्रैग करना है. ये हमारे लिए सबके हो गया. देखो 4000 का 10%, 400. सिमिलर इसका भी 10% हो गया, 500 का 50 आ गया, है ना. मतलब सब परफेक्टली कैलकुलेट हो गया. अब मान लो आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को हटाना है जिसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट, है ना. तो लेट मी गिव द नेट अमाउंट ऑल्सो. ये मैंने नेट अमाउंट दे दिया. नेट अमाउंट क्या होगा, इक्वल टू साइन रखो पहले, अमाउंट माइनस, आई हैव टू यूज़ व्हाट, यहाँ पे आप आ जाओ फॉर्मूला पे, अमाउंट को आपको माइनस करना है,
एक मिनट, माइनस का साइन 1 2 3 करते हैं, ये माइनस का साइन आ गया, डिस्काउंट इन रुपीज़। अब आप इसको टिक करो राइट पे, ये आपका कैलकुलेशन हो गया, मतलब आपको नेट अमाउंट आ गया डिस्काउंट माइनस से। फिर इसको क्लिक करो, ऊपर फिल ऑप्शन है, और ये फिर आप उसको बाकी पूरे को यहाँ से कर दिए फिल, डन। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमको क्या करना है, ये हमारा बिल इतना रेडी हो गया, आप देख सकते हो। मैं आगे आइटम नहीं बना रहा हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो। ये मैं 6 वाला से भी यहाँ से भी हटा देता हूँ ये आइटम्स को, ठीक है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम, नेट अमाउंट तो हो गया हमारा कैलकुलेट। अब नेट अमाउंट को हम टोटल करते हैं, यहाँ पे रखे हमने, यहाँ पे दे दिया मैंने टोटल, और उसके बाद मैं इसको जीएसटी लगा के, है ना, सॉरी एक ही कॉलम में हो गया, इसको ओके कर दो, टोटल हो गया हमारा, ये देखो। और इस टोटल के बाद हम इसमें कर सकते हैं कैलकुलेट जीएसटी, और जीएसटी कैलकुलेट के बाद फाइनल अमाउंट हमको करना है। जैसे डिस्काउंट माइनस होता है ना, और जीएसटी जो टैक्स होता है ये प्लस होता है अमाउंट में, तो ये मैं फाइनल अमाउंट डाल देता हूँ इसके लिए। अब टोटल आपको कैसे नेट का कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो टोटल बिल है वो नेट में है, तो टोटल को आप यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे हमको नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको यूज़ करना है सम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सम फंक्शन। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। सो जस्ट यहाँ पे रखा मैंने, और सबसे पहले मैं इक्वल टू टाइप कर देता हूँ, ये इक्वल टू आ गया। देन आई हैव टू यूज़ द फंक्शन सम, SUM, सम फंक्शन। सो यहाँ पे देखो मेरा लिख रहा है, बहुत सारे फंक्शन है सम से रिलेटेड, हमको सबसे नीचे वाला जो लिखा है सम वो करना है। अब आपको यहाँ पे नंबर्स करने, कौन कौन से नंबर को आपको सम करना है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, फिर सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड, आप ऐसे धीरे धीरे आप उसको पर्टिकुलर सबको क्लिक करके सकते हो। जैसे सारे नंबर को हमने क्लिक कर दिया, ये ग्रीन बटन को दबाया, और ये आपका सम आ गया। और सम कैलकुलेट हो जाने के बाद अब आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी मान लो मैं 18% देता हूँ, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। तो कैसे अमाउंट निकालेंगे, जस्ट डबल क्लिक, इक्वल टू साइन तो करना ही है, भूलना नहीं उसे। देन आपको टोटल का निकालना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टोटल, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई करना है आपको, इसमें स्टार साइन आपको यूज़ कर सकते हो आप। 1 मिनट, दिस स्टार इज द मल्टीप्लिकेशन, ये मैं दे दिया 18, और 1 मिनट, परसेंट का साइन चाहिए, है ना। सो साइन के लिए थोड़ा सा मुझे इसमें ढूंढना पड़ जाता है, 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट, हाँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसमें आपको लिखना सिंपली है, आपको बस 18 और ये परसेंट का साइन आपको लिखना है। तो मैं वो परसेंट का साइन देख रहा हूँ कहाँ पर है, कभी यहीं शो करता है, कभी, जस्ट 1 मिनट, 18% इफ साइन इट इज नॉट, देन अपॉन 100 आल्सो यू कैन डू इट द सेम थिंग, upon 100 also, because 18%, so 18 divided by 100, so then also you will get the amount, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 18% जो हमने निकाला है, you have to plus it this amount, है ना, तो that will be the final amount. So let me plus this one, just click here, double click here, so the keyboard you will get, put the equal to sign, then what you have to plus both the values, just click the first value, okay, then after you have to plus it, so this plus sign is there, then this G12 plus G13, हाँ, दोनों का सम हो गया, click on right button, you will get the final amount. So this way you can create your bill in mobile also, using this Excel software, okay. So in this mobile now you can do this practice. बाकी कलर वलर सब आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्लिक कर दिया, सारे वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर दिया, ऐसा, है ना। देन आफ्टर बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। ये बोल्ड कलर नीचे दिया हुआ है, ये सारे कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मैं पेंसिल से भी शो कर देता हूँ। इस साइड आपको सारे कमांड ये मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें को कर सकते हो। तो लेट्स सी,
मैंने बोल्ड कर दिया है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, राइट, ओके। देन आफ्टर ये अच्छा लग रहा है अब हमारे को। अब मान लो आपको कुछ पर्टिकुलर फिर से ये प्रोडक्ट और इतने पर्टिकुलर कलर अलग करना है, तो आपने इसको भी सिंपली ऐसा कर सकते हो या इस टाइप के कलरफुल बना सकते हो। इवन आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके, है ना, ये इस तरह से 1 मिनट ऐसा, ये देखो। तो इस तरह से ये प्रॉपरली आप चाहो तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद आप नॉर्मल इसको सेव कर लो, इस फाइल का नाम जो देना है आप डाल दो, माय बिल, और ये सेव हो गया। मतलब पूरा जो आप कंप्यूटर में कर पा रहे थे वो अब मोबाइल में आप इस पर्टिकुलर ऐप WPS ऐप के साथ कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल का मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको बिल कैसे बनाना है मोबाइल डिवाइस पर और एक्सेल की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हुए, ये मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये फिनिश हुआ। मैं